ततश्च पौगण्डवयश्रितौ व्रजे बभूवतस्तु पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तो पशुभिः सममृतौ वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है. Is it okay if I can speak in English, Prabhuji? Because Yes. I spoke little in English, in Hindi, so I'll maybe switch little in English. Okay. So Srimad Bhagavatam has described Tatascha Pauganda Vayashrito Vraje. When Krishna, 6-year-old, entered the Paugandish, Tatascha Pauganda Vayashrito Vraje, Vraj, in the land of Vraja, when Krishna turned 6, Babhuvatastau Pashupala Sammatau. Till now, Krishna was taking care of the calves. But Gashchara Yanto Sakhibhi Samambratam Vrindavanam Punyam Ativa Chakratuhu. Krishna, the day he turned 6, he requested his parents that till now I have been a Vatsapal. I have been taking care of calves, but now I have become a big boy. Last year I was 5, but now I have become 6. Till last year I was a very little cute boy and I was only taking care of calves. पिछले वर्ष तक मैं बाल्य लीला में था, कौमार लीला में था, तो मैं केवल वत्सपाल, बछड़ों की सेवा कर रहा था. पर अब मैं 6 वर्ष का हो गया, मुझे इच्छा है कि वत्सपाल नहीं, मैं गोपाल बन जाऊं. मैं गौ की रक्षा करूं और गौ का पालन करूं. हमारे महाराज जी परम पूज्यपाद श्रील राधा गोविंद महाराज वर्णन करते हैं that at this point when Krishna went with this proposal to Nanda Maharaj and he said that I have become a big boy, let me take care of cows instead of calves. So Nanda Maharaj said, I have no problem, you go and ask Maya. If Mother Yashoda has no problem, I have no problem. So then Krishna came to Mother Yashoda and he said, oh dear Maya, last year I was very weak, but this year I have become very strong. Last year I was not very intelligent, but this year I have become very intelligent. I'm 6 years old. Till last year I didn't know any directions, but this year I have become very good with my geography. And these are the 3 things needed to take care of a cow. One has to be intelligent, one has to be strong, and one must know the geography of where the home is, where the forest is, and how to navigate. Mother Yashoda looked at Krishna and he said, oh yes, you have become so strong. I know your strength. You can lift up butter pots in the neighbor's house and even break it down. You're so strong. चोरी भी करते हैं और मटकी उठा नहीं पाते इसलिए फोड़ देते हैं. वाह वाह, बहुत बल है. You have become very strong. Krishna said, Maya, okay, I may not be that strong, but I'm very intelligent. Krishna said, yes, you're so intelligent. When I tell you to eat something healthy, you go in the neighbor's home and you start eating butter. Then when I tell you, eat in our home, then instead of eating something good at our home, you're eating dirt. That's how intelligent you are. Krishna said, okay, maybe I'm not very intelligent, but I am very good with geography. Mother Yashoda said, yes, that I agree. You're so good with geography that you exactly know the road to everybody's heart. And you have walked into everybody's heart in Braja in the last 6 years. Before that, nobody knew you, but now after you have appeared in Braja, you know the path to enter everybody's heart. Krishna, you're my dear. Mother Yashoda embraced Krishna. Krishna said, don't change the topic. I have come here for a specific purpose. I want to go in taking the cows to the forest. Give me this opportunity to take big cows and bulls. Krishna is showing like this. Let me take big bulls into the forest. Bhagavatam describes Shringi, which means that those animals which have horns, Krishna would go and touch those horns. And then Agni, wherever there is fire, Krishna would go and put his hand into fire. Damshtri, wherever animals had big sharp teeth, he would put his fingers into their mouth to be bitten by those teeth. And Asi, which means wherever there used to be swords, or in parallel translations of Bhagavatam, Ahi, wherever there are snakes, Krishna would go to embrace the snakes and touch the sword. And Jala, wherever there is deep water, Krishna will say, I want to swim, even when he doesn't know to swim.
And kanthakebhyah, wherever there are sharp thorns, Krishna would go and jump on them. And Mother Yashoda has to go and bring him back. So wherever there is danger, Krishna would go. One commentator to Srimad Bhagavatam says, Krishna, right from his childhood, he's predicting and showing the world what he's going to do in the future. By touching the horns of the bulls, Krishna is showing, in the future, I will hold these horns and I will kill Arishtasur. By touching fire, he's telling the world, oh, I will swallow the forest fire. By showing the teeth and putting his hand into the mouth with sharp teeth of the monkeys, he's showing that I am going to break the teeth of Keshi. By embracing the snakes, he's saying, in this way I will shower mercy to Kaliya, who will embrace me while being in the water. And by walking on thorns, Krishna is teaching, in this way I will walk on the heads of all the thorns on the world, starting with Kamsa. Mridante kushakantakan. Valmiki Ramayana says that if the path is filled with thorns, Mother Sita tells Sri Ram, I will walk ahead and clear the thorns. But in Krishna Leela, what is Krishna doing? He is clearing the thorns. Actually, the path of clearing thorns is very beautiful. Every day Krishna would go to the forest and his feet would chalasi yad brajan charayan pashun nalina sundaram nathate padam shila trinankurai sidatitinaha kalilatam manakanta gacchati. The fact that, just the thought that Krishna is going to place his lotus feet on the thorns was such a thorn in itself in the heart of the gopis that all night they used to sit and clear the thorns from the path of Krishna's lotus feet. So next day when Krishna would walk, there were no thorns. And Krishna never realized this. But after leaving Vrindavan, when he used to have shoes and he would walk in Mathura and Dwaraka, he would see that the thorns exist. So that's when for the first time Krishna thought thorns would have existed even in Vrindavan. But the Brajbasis love me so much that they would sit at night and clear the thorns so that next day I am not hurt by the thorns. And Krishna has said, Ye yatham mam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. If my devotees clear thorns for me, then what will I do? I will speak Bhagavad Gita and clear the thorns on the path of all my devotees. Those devotees who are walking their way back home, back to Godhead, they may have the thorns of lust and anger and greed and pride and envy. By speaking Bhagavad Gita, I will clear the thorns on their path, just like they have cleared the thorns on my path. So Krishna would tell Mother Yashoda, by Shringi, Agni, Damshri, Asi Jalan, Kanthakebhyah, by doing all this beautiful, wonderful childhood pastimes, Balya Leelam Manoharam, Gopala Udara Charitam, by touching fire and putting his hand into the mouth and by touching the horns, Krishna is showing, one commentator writes to Dasham Skand Bhagavatam, that Krishna is showing for all times to come, these are the demons I will kill. But for Mother Yashoda, Krishna is still a little baby. Krishna is a very cute little baby. Raskhanji writes, Dhuri bhare ati shobhit shamaju kaisi bani sir sundar choti खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजति पीरी कचोटी या छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी. How beautiful is Krishna's form. Dhuri bhare ati shobhita shamaju. His beautiful little Bal Gopal, his form is filled with the dust of Braja. Braj ki dhuri. This dust of Braja is so glorious. मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़े और मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए. मुक्ति देवी इज आस्किंग कृष्णा, मुझे तो आपने सेवा दी दूसरों को मुक्त कराने के लिए, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं. प्रभु ने क्या की? ब्रजरज लेकर मस्तक में लगा दी मुक्ति देवी की. ब्रजरज उड़ाए और मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए. मुक्ति देवी मुक्त हो गई ब्रज की धूली से. तो प्रभु उस भक्त चरण रज ब्रज रज से अभिषिक्त होते हैं. एकदा क्रीड मानस्ते रामाध्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन. अपने शरीर में लगाना ही क्या, प्रभु ने तो उसको भोग समझकर अर्पित प्रसाद समझकर पा भी लिया.
तो धूरी भरे अति शोभित शामजू। रसखान जी कहते हैं प्रभु का शरीर ब्रजरथ से अभिषिक्त है, और कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कितनी सुंदर चोटी प्रभु ने बनाई अपने केश पाश से। और खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। पीली धोती पहनी है पीताम्बर प्रभु ने, और खेलत खात, घर में मैया ने बिठा दिया बैठकर खाओ, और बाहर सखागण पुकार रहे हैं कि आओ खेलो। तो अब वात्सल्य रस और सख्य रस में अब युद्ध हो रहा है। तो प्रभु बीच के जो रसराज हैं वो फंस गए। तो क्या कर रहे हैं, बाहर खेलने जाते हैं पर हाथ में रोटी लेकर जाते हैं। तो खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में फिर फिर कर वो रोटी खाते खाते खेल रहे हैं, और पैर के जो नुपुर की ध्वनि है बहुत सुंदर झन 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 बज रही है। तो खेलत खात फिरे फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। इतनी पीली धोती, या छवि को रसखान विलोकत। रसखान जी कहते हैं इस छवि को देखते देखते आहा इतनी सुख की अनुभूति हो रही है। वारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके छवि पर मूर्छित हो जाते हैं, उन बाल गोपाल की छवि मैं देख रहा हूं। तब हो क्या रहा है, ब्रज के कौवे की क्या महिमा गाएं, काग के भाग बड़े सजनी। अरे गोपिया, ब्रज के कौओं की महिमा देखिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये प्रभु खेलते खेलते रोटी और माखन रख के खेल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और कौआ आकर वो प्रसाद हाथ से लेकर जाता है। ये है प्रभु की छवि। तो मैया यशोदा कहते हैं अरे लाला तू इतना छोटा सा है, कैसे जाकर तू ये वन विहार करेगा, कैसे गौओं को लेकर गौचारण करेगा। तो लाला बोले अरे दाऊ जी को पूछ कर देखो, बलदाऊ जी बात करेंगे आपसे। तो बलदाऊ जी बोलने लगे हाँ हाँ लाला तो बहुत बलवान है, बहुत बुद्धिशाली है, बहुत अच्छे अच्छे गुण गाने लगे। मैया यशोदा बोलने लगी कि अरे दाऊ जी अब मेरा लाला कैसा है, इसका सिफारिश मैं आपसे लूं? जिनको 9 महीने मैं गर्भ में रखी हूं, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः। अम्ब शब्द प्रयोग है भागवत में। प्रभु कहते हैं हे यशोदा, हे यशोदे, आप वही माँ हो जिनके गर्भ में 9 महीने में वास किया हूं। तो मैया यशोदा कहती है मेरा लाला कैसा है ये मैं दाऊ जी से सुनूं? दाऊ जी कहते हैं अरे सच्ची मैया, आप इनको एक बार जाने दीजिए, मैं जाऊंगा इन्हीं के साथ, मैं रक्षा करूंगा। हर बार जब संकट आया है इनकी रक्षा मैं किया हूं। आई विल प्रोटेक्ट कृष्णा लाइक द आईलिड प्रोटेक्ट्स द आईबॉल। जिस प्रकार पंकज रूपी नयन के पंखुड़े रूपी पलखे हैं, जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करती है, हे मैया वैसे दाऊ जी लाला की रक्षा करेंगे। मैया जब ये सुनी, क्योंकि नाम में बलराम बल है, तो फिर वो रक्षा तो करेंगे ही। तो कहे अच्छा अगर आप रक्षा करेंगे तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। अब लाला बहुत उछलने लगे, क्योंकि अब उनको पता चला कि अब वत्सपाल छोड़ दो, हम गोपाल बनने वाले हैं, वन जाएंगे और वन विहार करेंगे, बहुत सुंदर वन लीला होगी। मैया बोली लेकिन दाऊ जी शर्त है। दाऊ जी बोले सब मंजूर, आप शर्त बोल मंजूर। मैया बोली पहला शर्त तो ये है कि 3-3 घंटे में लाला को कुछ खिलाते पिलाते रहना, क्योंकि 3 घंटे में भूख लगती है। घर में तो 3-3 घंटे में, तो 24 घंटे में 8 बार भोग लगता है ठाकुर को। हम तो मंदिर में 6 बार लगा देते हैं, मैया यशोदा 8 बार लगाती है, हर 3 घंटे में 1 भोग, तो 24 घंटे में 8 भोग। और फिर लाला को कहती है कि तू बहुत मोटा हो गया है। अब खिलाने वाली मैया 8 बार खिलाएगी तो लाला मोटे क्यों नहीं होंगी? गोल मटोल बाल गोपाल की जय हो। तो मैया कहती है दाऊ जी से हर 3 घंटे कुछ खिलाते पिलाते रहना। कई बार भूख के कारण वृक्ष ना चढ़ जाए, वृक्ष चढ़े तो 3 बातें होंगी, एक तो उतरना नहीं जानता, दूसरी बात ऊपर चढ़े तो डर लगता है, वो वहां से छलांग नहीं लगा पाएगा, और तीसरी बात वहां भूख लगे और अगर फल खाने की चेष्टा करे, प्रयास करे, और वहां कोई सांप हो जाए, क्योंकि वृक्ष में तो कई बार सांप वास करते हैं, वो अगर फल जहरीला निकले, लाला को समझ में ना आए, तो फिर आप 3-3 घंटे में लाला को खिलाते पिलाते रहना। दाऊ जी बोले ठीक। फिर दूसरा शर्त ये मैया ने कहा कि कहाँ कुंड हो, सरोवर हो, नदी हो, लाला को पास जाने मत देना, क्योंकि ये तो ना तैरना जानता है, कुछ नहीं जानता, केवल डूबना जानता है। कौन से डूब? इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे
स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापायंतम। आनंद के कुंड में डूबना और डुबाना जानता है ये लाल, और कुछ नहीं जानता। पानी में तैरता नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में गोते लगाता है गौरांग महाप्रभु के अवतार में। तो लाला को पानी से दूर रखो। जो प्रभु क्षीर सागर में क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में शयन करते हैं, लीला करते हैं, योग निद्रा में वास करते हैं, उन प्रभु को बाल्य लीला में मैया कहती है जल से दूर रखो। अद्भुत प्रेम है, वात्सल्य प्रेम। नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। मैया यशोदा की जय हो। फिर लाला बोले हाँ, पानी के पास जाने नहीं दूंगा, अगर आप चाहती हो तो पानी पीने भी नहीं दूंगा। मैया बोली नहीं, पानी तो पिलाते रहो पर डूबने मत देना बस। तीसरी बात, मैया बोली आज पहला दिन है तो बन के एकदम अंदर मत ले जाओ, ये बस यहाँ से 1-2 किलोमीटर लगाकर खींच कर ले आ जाओ, क्योंकि थक जाएगा, आदत नहीं है चलने का। दाऊद जी बोले ठीक। फिर मैया बोले एक और शर्त है। शर्त क्या है एक और? कई बार कंदर होते हैं, गुफाएं होती हैं, खड्डे होते हैं, लाला का हाथ धर के रखना। यहां वहां नटखटलाल भागता रहता है, गुफे में चला जाएगा, फिर अंदर से रोएगा, हमें सुनाई भी नहीं देगा बाहर। व्योमासुर की कथा देख लीजिए, सुग्रीव और वाली की कथा देख लीजिए। जाकर कहीं गुफे में बैठ जाएगा, मैया मैया करके अंदर से रोएगा। मैया घर में बैठी, दाऊ जी को सुनाई ना पड़े क्योंकि वो सखागण के साथ खेलते रहेंगे, तो हाथ धर के रहना। दाऊ जी को मैया कह रही है वो हाथ छोड़ने का प्रयास करे, फिर भी तुम पकड़ के दृढ़ पकड़ लेना। हाँ, दृढ़ व्रता। यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत मानकर पकड़ लेना। जो प्रभु हमारा हाथ धरते हैं जन्म जन्मांतर। पूतना आकर कहने लगी लाला छोड़ दे छोड़ दे, तू भगवान है ये जानती तो मैं कभी तेरे पास नहीं आती। ऐसे पूतना का हाथ धरकर प्रभु छोड़ नहीं पाए। सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। पूतना रोते रोते मर गई, लाला मुझे छोड़ दे। और प्रभु कहते हैं जो मां बनकर मेरे घर आए, स्तनपान करने की चेष्टा करे और मातृ स्नेह से व्यवहार करे, ऐसे पूतना का हाथ मैं कैसे छोड़ सकता हूं। जो भक्त नामापराध वैष्णव अपराध भी करता है इस जगत में, उसका भी हाथ मैं जन्म जन्मांतर धरता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। ए पूतने, आप स्वयं आकर मुझे स्तनपान कराने की चेष्टा कर रहे हो, वात्सल्य रस में डूबने की चेष्टा कर रहे हो, आपका हाथ मैं कैसे छोड़ूं। और उन प्रभु का हाथ धरने की सेवा मैया ने दाऊ जी को दी। और फिर कहते हैं, पूरा शर्त होने के बाद फिर कहते हैं धूप के सामने ज्यादा मत रख लेना, जन्म से कारो करोटो है ये। और वैसे जन्म से कन्हैया श्याम वर्ण के हैं, धूप में सेकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाऊ जी आप चाहिए तो धूप में रहो, इनको धूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ मैया हम धर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार इतना कहकर मैया कहती है, लाला को पास बुलाकर नरसिंह कवच लगाती है, हाँ, रक्षा कवच देती है मातृ स्नेह की, कि नजर ना लगे, कोई भूत प्रेत हावी ना हो जाए। लाला संभाल के रहना, नरसिंह देव का नाम लेते रहना। और लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि नरसिंह देव जिनका केवल अंश के अंश कला अवतार हैं, वो स्रोत भगवान कृष्ण बाल गोपाल यहाँ मैया के गोद में खेलते खेलते पलते पलते वात्सल्य प्रेम के महासागर में गोते लगाते लगाते अब वो नरसिंह देव का नाम लेंगे अपनी स्वरक्षा के लिए। तो इस भाव से मैया नंद बाबा की अनुमति, स्वयं की अनुमति, बलदाऊ जी की अनुमति, ब्रजवासियों की अनुमति से प्रभु को घोषित करती है गोपाल। और जिस तिथि में यह राज्य तिलक हुआ कि आज से तुम बड़े गौ की रक्षा करोगे और उनका विचरण करोगे, उनके साथ तुम वन में भ्रमण करोगे, वही तिथि पावन पर्व है गोपाष्टमी। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं गोपाष्टमी के दिन, हे प्रभु, ओ डियर कृष्णा, यू आर गोपाल, you take care of the cows. Cows in Sanskrit are called go, but go also means senses. My Lord, just like you take care of the cows, and sometimes the cows go astray, पथभ्रष्ट हो जाते हैं कई बार गैया, उसी प्रकार गो रूपी मेरे इंद्रियां भी यहां वहां पथभ्रष्ट हो रही है इस भव संसार के वन में।
हे गोपाल, जो गौ के पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, मेरे इंद्रिय रूपी गौओं की भी रक्षा कीजिए। वन भववन में वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और यमुना रूपी आपका अमृतमय जो गुणावली है, इस जल को छोड़कर जगत के विष गटर रूपी इस जगत की वार्ता में इंद्रिय रूपी गौ फंस गई है। हे प्रभु, आप अपनी लाठी का प्रयोग कीजिए। कौन सी लाठी? कृपा। कृपा की लाठी रूपी आप कृपा की लाठी का प्रयोग करके गौ रूपी इंद्रियों को पथभ्रष्ट होने से आप बचा लीजिए, और इस जगत के गटर रूपी गंदे पानी, नाले रूपी असत वार्ता से बचाकर मेरी इंद्रियों को यमुना जल तक ले जाएं। यमुना रूपी आपकी गुणावली है, उसी का जल इंद्रिय रूपी मेरे गौ रूपी मेरी इंद्रियां पान करे गोपाष्टमी में। हे गोपाल, आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। तो इस प्रकार, वैसे तो ये कथा का विषय नहीं था, पर क्या कहें, प्रभु लीला बिहारी है। और एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैचे नचाए ते तैचे करे नृत्य। ये वाणी भी, ये रसना भी जो है प्रभु का ही सेवक है। तो जिस प्रकार स्वामी नचाए उस प्रकार नृत्य करना, यही सेवा है। तो आप सबके चरणों में गोपाष्टमी की कथा समर्पित है, नाम की महिमा समर्पित है। आप सब वैष्णव हो, वैष्णवों की सेवा बस ये जीवन का कर्तव्य है। तो आप सबके संतोष के लिए और आप सबके आदेश अनुसार मैं बड़बड़ रहा था, तो महाराज जी के समक्ष बोलना मानो सूरज को दीपक दिखाने बराबर है। और दीपक भी नहीं, ये तो कुछ मैं अलग ही कुछ और ही दिखा रहा था, दीपक भी नहीं था ये तो जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, आप सब सारे ग्रही वैष्णव मुझे क्षमा करें। और यदि आपके हृदय में लेश मात्र, रंच मात्र भी आनंद की अनुभूति हुई, तो आप कृपया प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरी मति महाप्रभु के इस बहुत सुंदर आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद की बहुत सुंदर संस्था में जन्म जन्मांतर लगी रहे।